Good morning, students. I'm back again with another video. I hope you all are enjoying online classes and understanding the content. Let's continue with chapter 2 of EVS, that is My Body. Before starting the new topic, let's have a quick recap of the chapter. We have learned about my body. What we have learned? We have learned few parts of our body. The parts which we can see are our external body parts or organs. What are external body parts? The parts which we can see. That is what we can see. We can see our hands, legs, eyes, mouth. Okay? And the parts which we cannot see are our internal organs. What are internal organs? Like heart, lungs, stomach, that we cannot see. हम देख नहीं सकते हैं. So first part we have read is head. Head is the topmost part, uppermost part. मतलब सबसे ऊपर जो होता है हमारी बॉडी में is the head. And what we can see in the head? Head में हम क्या क्या देख सकते हैं? We can see our eyes, nose, ears, mouth. Okay? ये हमारे सब एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जो हम हेड में देख सकते हैं. बट हेड के अंदर एक इंटरनल ऑर्गन भी है. विच इज़ दिस इंटरनल ऑर्गन? ब्रेन. एंड दैट इज़ द वाइटल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि सारे बॉडी के पार्ट्स ब्रेन की हेल्प से ही फंक्शन करते हैं. ओके, इट इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ हेड. नाउ सेकेंड टॉपिक वॉज नेक. नेक इज दिस. विच वॉट इज नेक? दिस इज नेक. इट होल्ड्स दी, हमारी जो हेड है उसको वो होल्ड करता है एंड जॉइंस दी हेड विद दी अदर बॉडी पार्ट्स. ओके, नाउ थर्ड वी हैव रेड लिम्स. व्हाट आर लिम्स? लिम्स आर आर हैंड्स एंड आर लेग्स. बोथ आर लिम्स. लिम्स हमको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो आर्म्स आर, हैंड्स जो होते हैं आर्म्स, दे आर आवर अपर लिम्स एंड लेग्स जो होते हैं वो हमारे लोअर लिम्स होते हैं. अब अपर लिम में, हैंड्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? आर पाम, फिंगर्स, रिस्ट, फोर आर्म, एल्बो, अप आर्म. ओके, दिस इज ऑल our upper limb, that is arm. You can see this diagram very carefully. This is our palm, our wrist, our fingers, our elbow, forearm and upper arm. Okay, and we have also learned about our lower arm. Our lower limb is this, our legs. तो legs के अंदर कौन कौन से parts होते हैं? Thigh, knee, toe, ankle and foot. It helps us to jump, play, run, walk. Okay, and when we combine both the limbs, it helps us to do various activities like swimming, dancing. Okay, the limbs helps us do swimming, dancing. Now today's new topic is torso. What is torso? It is the new word for you. Torso. First I'll read and then I'll explain it to you. Okay, the torso is the part of our body between the neck and the lower limbs. It consists of our chest, abdomen and back. The chest consists of the heart and the lungs, which are protected by the rib cage. Abdomen is the portion between the rib cage. It consists of the stomach, liver and intestines. Now what is torso? Torso क्या होता है? The part between your lower limb and the neck. Lower limb मतलब legs और neck means जो हमारा neck होता है उसके बीच में जो part होता है that is our torso. See, I'll show you one of the figure. See this figure. This is our neck. ये हमारा neck है, right? And this is our lower limb. ये हमारा lower limb है. The part between this, ये जो बीच का part होता है is our torso. Okay? Okay, students? See, now what it is saying, the torso is the part of our body between the neck and the lower limb. We have read legs और neck के बीच में जो part है that is called torso.
अब टॉर्सो में जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो कौन कौन से आते हैं, जो हम देख सकते हैं, जैसे चेस्ट, बैक, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं. अब चेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, व्हाट द चेस्ट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड लंग्स. हार्ट और लंग्स होते हैं. नाउ द हार्ट एंड लंग्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड. हार्ट और लंग्स जो होते हैं ना, उनको एक केज टाइप का रिप केज होता है, हम रिप केज बोलते हैं उसको, बट दैट इज़ अ टाइप ऑफ केज जिसके अंदर वो दोनों हार्ट और लंग्स कवर्ड रहते हैं. ओके, कैसे, हार्ट है पहले, देन लंग्स, एंड वो सब रिप केज में कवर्ड है, उसके ऊपर हमारे चेस्ट होती है. ओके, नाउ जो एब्डोमेन होता है इज़ द पोर्शन बिलो द रिप केज. अब हार्ट और लंग्स जैसे रिप केज के अंदर हैं, अब रिप केज के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन. एब्डोमेन के अंदर क्या क्या आता है हमारा, स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन्स. मीन्स जो हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं फ्रॉम आर नेक, आफ्टर नेक के बाद और लोअर लिम्ब से पहले, ये पूरा टॉर्सो होता है. इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, वी हैव हार्ट, लंग्स जो कि कवर्ड हैं रिब केज से. नाउ रिब केज के बाद क्या आता है, रिब केज के बाद आता है एब्डोमेन. एब्डोमेन के अंदर क्या क्या है, स्टमक, liver and intestine. Okay students, and back you all know that is the back portion of our body. Okay students, now the next topic is bones and muscles. See, before starting bones and muscles, I'll tell you one thing. What are bones? Bones क्या होते हैं, bones हमारी बॉडी को शेप देते हैं. हमने देखा है ना कि बोन्स कैसे होते हैं, जो हमारी बॉडी को शेप देते हैं. ओके, और मसल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मसल्स, मसल्स आर द लेयर ऑफ फ्लैश अटैच टू द बोन्स. जैसे हमारे बोन्स क्या हैं, बोन्स हमारे हार्ड, जो हम आप अपने सब लोग एल्बो पर हाथ लगाइए, पुट योर हैंड ऑन योर एल्बो, जस्ट सी कैन यू फील द हार्ड थिंग, कुछ आप हार्ड फील करते हैं. आप अपने नीज पर भी फील कर सकते हैं वो चीज़, सेम चीज़. पुट योर हैंड ऑन योर फॉरहेड पे भी आप फील कर सकते हैं समथिंग हार्ड इज़ देयर इनसाइड, दैट इज़ आवर बोन. एंड जो बोन को कवर करे हुए है एक फ्लैश टाइप की लेयर, मतलब जैसे हमारी स्किन है ना, स्किन के अंदर जो फ्लैश टाइप की लेयर है वो है हमारे मसल्स. ओके स्टूडेंट्स, कम लेट्स रीड. इफ़ वी ट्राई टू squeeze our left wrist with our right hand, we can feel something hard below our skin. Everyone just put your right hand on your left wrist. right hand लीजिए और left wrist पे हाथ लगाइए. आप इसको turn करेंगे जब, you will feel something hard here. कुछ hard feel करेंगे आप यहाँ पर. What is this? These are bones. These hard portions of our body are the bones. Okay students, do you understand what are bones? The hard part that you feel inside your skin is the bone. We can feel our bones at our elbows, ribs, knuckles, forehead, knees, etc. हम कहाँ कहाँ फील कर सकते हैं, at our elbow पर, ribs में, knuckles पर, forehead पर and knees पर. The bones give shape to our body. Now अगर बोन नहीं होते, if there were no bones, हमारी बॉडी सीधे स्टैंड हो पाती? नो. क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारी बॉडी को शेप ही बोन्स देते हैं. अगर मेरे हैंड में यहाँ पर ये बोन नहीं होगा तो मेरा हैंड तो ऐसे से हिलता रहेगा. ये स्टैंड कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बोन है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्टर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी एंड द इंटरनल ऑर्गन्स. अब जैसे अगर बोन्स नहीं हैं, सो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, तो वो इंटरनल ऑर्गन सब बाहर हमें स्किन के नीचे दिखेंगे, क्या वो प्रोटेक्ट रह पाएंगे? बिकॉज इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी डेलिकेट, सॉफ्ट होते हैं बहुत, तो क्या वो प्रोटेक्ट रह पाएंगे? हमारी बॉडी को हमारे शेप जो देते हैं बोन्स, वो हमारे सॉफ्टर पोर्शन, जो हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्टर पोर्शंस हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, नाउ we have understood bones. Next one is muscles. Now what are muscles? I have told you the thing that is covering a small, a thin layer that is covering
आर बोन्स, उसे हम मसल्स कहते हैं. सी, मसल्स आर द लेयर्स ऑफ फ्लैश अटैच टू द बोन्स. बोन्स से जो फ्लैश की लेयर अटैच्ड है, दैट इज नोन एज मसल्स. मसल्स कंट्रोल वेरियस मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी. मसल्स बहुत सारी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं. लेट अस सी व्हाट आर द मूवमेंट. मसल गिव्स अस स्ट्रेंथ, हमें ताकत देती है. मसल्स गिव्स अस स्ट्रेंथ. इट आर we exert force on an object with the help of our muscles. Now वो क्या कह रहे हैं, we exert force, मतलब हम जैसे फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पर, with किसकी हेल्प से लगाते हैं, मसल्स की. Now if I want to press the book, it is going up from here, I have to press it. So I can press, I have to, when I am pressing it like this, I am pressing with the help of my muscles. The muscles of our face helps us smile, talk and eat. सी, व्हेन यू स्माइल, जब आप स्माइल करते हो, बात करते हो, खाते हो, आपका जो माउथ होता है उसकी मूवमेंट होती है. वो मूवमेंट किसकी हेल्प की वजह से होती है, मूवमेंट मसल्स की हेल्प की वजह से होती है. सो बोन्स गिव्स शेप टू अस एंड विद द हेल्प ऑफ मसल्स वी exert force on something और it helps us for any movement. हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए हमें मसल्स की ज़रूरत है एंड बॉडी के शेप के लिए हमारे बोन्स की ज़रूरत है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे. टुमारो we'll start with the next topic, that is taking care of our body parts. How we should take care of our body parts. Revise the chapter, learn it and practice it. Bye bye students. Take care of yourself.